ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے سوشل موومنٹس. سوشل موومنٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کی ہم نے کریکٹرسٹکس کرنی ہے. سوشل موومنٹ کے ہم نے اسٹیجز کرنے ہیں اور ٹائپس آف سوشل موومنٹ کرنا ہے. تو آج ہم لوگ اسٹارٹ لے رہے ہیں کہ سوشل موومنٹ کسے کہتے ہیں. سوشل موومنٹس جو ہیں وہ بہت ایزیلی اگر ہم کہیں کہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل موومنٹ جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے لوگوں کا. اور وہ ایفرٹ کس چیز قسم کا ہے لوگوں کا, اور وہ نمبر آف پیپل جو ہے وہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ یا تو سوشل چینج کو لانے کے لیے کر رہے ہیں یا سوشل چینج جو آ گیا ہے اس کو یا آنے والا ہے اس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. تو either to resist the change or to bring about a change in society. تو لارج نمبر آف پیپل جب کوئی جوائنٹ ہو جائیں, مل جائیں اور مل کر کوئی اٹیمپٹ کریں, کوئی ایفرٹ کریں اور مل کے اسٹرگل کریں تاکہ معاشرے کے کسی بھی حصے میں یا سوسائٹی کے کسی بھی آسپیکٹ میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ چینج لائے جا سکے یا چینج کو آنے سے روکا جا سکے, اس کو سوشل موومنٹ کہتے ہیں. تو سماجی تحریکیں جو ہیں وہ بہت ایزیلی ہم آسان ورڈز میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سماجی تحریک وہ اور تحریکوں کو کہتے ہیں یا ان موومنٹس کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ مل کر جو ہے سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا سوسائٹی کی کسی بھی آسپیکٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا جو تبدیلی آئی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہے سوشل موومنٹس جو بھی گروپ اسٹارٹ کرتا ہے وہ اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے, لیکن بعض اس کے اندر نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, بعض اس میں پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. جیسے سول رائٹس موومنٹ ہے, یعنی کہ جو ہمیں کانسٹیٹیوشن میں حقوق ملے ہیں اس کی, انوائرمنٹ کی موومنٹ, ہیومن رائٹس کی موومنٹ, بہت ساری موومنٹس آپ کو نظر آتی ہیں. پولیٹیکل موومنٹ جیسے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مسلم اور پی ٹی آئی, ان سب کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ان سب کی ابتدا پہلے ایک تحریک کی صورت میں ہوئی تھی. مسلم لیگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے تک کا نظر آتا ہے کہ پاکستان جب بنا نہیں تھا تو کانگریس سب سے پہلے ایک پارٹی بنی تھی. پہلے موومنٹ شروع ہوئی, پھر پارٹی کی حیثیت اختیار کی, پھر آل انڈیا مسلم لیگ تحریک شروع ہوئی اور تحریک کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹی بنی. تو یہاں پر جو ہے وہ دو چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ ہمیں ہم جب اس سماجی تحریک کی بات کرتے ہیں تو سماجی تحریکوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی تحریکیں بھی آتی ہیں اور انسانی حقوق کی تحریکیں بھی آتی ہیں, انوائرمنٹل ایشوز پر بھی موومنٹس ہو سکتی ہیں, سول رائٹس پر بھی ہو سکتی ہیں, اور کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی حصے کی طرف کوئی بھی آسپیکٹ کی جو ہے وہ موومنٹ ہو سکتی ہے. سوسائٹی جو موومنٹ ہے اس کا آسپیکٹ ہم اور اس کو فردر دکھاتے ہیں کہ موومنٹ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ پورے ملک اور باقاعدہ بعض اوقات پوری دنیا کے لوگ اپنے ساتھ ایک گروپ بنا لیں, سوشل الائنس بنا لیں, اور وہ آپس میں مل کر بھی کسی خاص چیز کو بلاک کر سکتے ہیں یا کسی خاص چیز کو افیکٹ کر سکتے ہیں تبدیلی لانے کے لیے, سوشل چینج لانے کے لیے. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بنا تھا تو پہلے ایک ایسی حیثیت بنی تھی جس کے اندر سمجھیں ایک تحریک کی حیثیت بنی تھی جس میں بہت سارے ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں, کیوں نہ ہم ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ملکوں کے لیے پوری دنیا کے لیے کام کر سکیں. تو یونائٹڈ نیشن جب پہلی دفعہ بنی تھی تو لیگ آف نیشن کے نام سے بنی تھی اور اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں تھی. اسی وجہ سے جب پہلی ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد یہ ٹوٹ گئی. دوسری ورلڈ وار, پہلی ورلڈ وار کے بعد بنی تھی لیگ آف نیشن, اور دوسری ورلڈ وار جیسے ہی دوسری ورلڈ وار ہوئی 1940s میں تو یہ 39 میں ہوئی تھی, وہ ٹوٹ گئی. اور وہ ٹوٹ کیوں گئی کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ وار کو روکنا. تو کیا افیکٹ لانا تھا, بلاک کرنا تھا, وار کو بلاک کرنا تھا.
ठीक है, यहाँ पर ब्लॉकिंग का ना, रेजिस्ट किसको करना था, वॉर को, लेकिन वॉर को रेजिस्ट नहीं कर सके तो सेकेंड वॉर हो गई, जिसकी वजह से ये टूट गई। जब सेकेंड वॉर खत्म हुई इसके बाद दोबारा पूरी दुनिया के ममालिक ने एक बड़ी अलायंस बनाई और कहा कि अभी हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा, जो आज तक चल रही है। तो बाज़ औक़ात पूरी दुनिया के लेवल पर बन सकती है और बाज़ औक़ात ज़्यादातर जो मेजॉरिटी होती है वो मुल्क के अंदर बनती है, मुल्क से बाहर बहुत कम बनती हैं। सिर्फ यूनाइटेड नेशन की एग्जांपल हमें नज़र आती है जिसमें उसमें सारे ममालिक हमने एज ए मेंबर अब आ गए हैं और ये बाकायदा फॉर्मल या एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन गया है यूनाइटेड नेशन का। बाकी जो सोशल मूवमेंट और समाजी तहरीक हैं जिसमें यंग डॉक्टर्स की तहरीक आ गई, जिसके अंदर लॉयर्स एसोसिएशन की तहरीक है, जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक चल रही है अमेरिका में। तो इस तरह की जो तहरीकें हैं वो सिर्फ अपने ममालिक के अपने ही गोल हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए की जाती है। तो कोई मकसद हासिल करने के लिए सोशल मूवमेंट या समाजी तहरीक बनती है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, वो हम आगे भी जाकर करते हैं। तो सोशल मूवमेंट जो है हम वो कहते हैं कि कलेक्टिव एक्शन है और ज़्यादातर उन लोगों का एक्शन है उनको लगता है कि सोसाइटी में उनके मकसद का काम नहीं हो रहा, उनके लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, इस वजह से वो उसको खुद ही अपने मदद आपके तहत जो है वो आगे बढ़ते हैं, उस सोशल चेंज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं या रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं या चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ये चेंज जो है पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, किसी रिलीजियस एस्पेक्ट का हो सकता है, किसी एथनिसिटी का हो सकता है। ये जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट है, प्रो लाइफ प्रो चॉइस मूवमेंट है। सिविल राइट मूवमेंट का मतलब है जैसे कि आपका आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हक है कि एजुकेशन जो है वो मैट्रिक तक वो पॉलिसी है, सॉरी, आपका हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको जो है बोलने का इख्तियार है। तो अगर गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपको बोलने से रोकती हैं तो आप बाकायदा उसकी मूवमेंट जो है सियासत, वो सहाफ़ियों ने भी मूवमेंट शुरू की थी, बहुत सारे आम लोगों ने मूवमेंट शुरू की थी कि ये कैसे ये जो है सोशल सिविल राइट्स मूवमेंट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मूवमेंट चली थी। फिर प्रो लाइफ और प्रो चॉइस मूवमेंट्स में जैसे अबॉर्शन की मूवमेंट चली थी दुनिया में, मुख्तलिफ मुल्कों में, इसमें अमेरिका में चली थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो सोशल मूवमेंट चला रहे थे वही कह रहे थे जो अबॉर्शन के हक में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अबॉर्शन के खिलाफ हैं। तो जो अबॉर्शन के हक में है वही उसको कहते हैं प्रो लाइफ मूवमेंट, यानी जिंदगी बचाओ मूवमेंट। और प्रो चॉइस का मूवमेंट का मतलब है कि आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहें वो करें। तो बहुत सारी वहाँ पर जो मजहबी जमातें हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो है थैंक्स गिविंग आया है अमेरिका में, और वहाँ पर एक छोटी सी मूवमेंट चली और वो मूवमेंट का मकसद ये था कि थैंक्स गिविंग में हमें पाबंदियाँ, हमारी लॉकडाउन की पाबंदियाँ हटाई जाएँ। तो उन्होंने क्या किया, वो मूवमेंट चलाई और ये प्रो चॉइस मूवमेंट थी। प्रो चॉइस मूवमेंट चलाई कि हमें हक दिया जाए, हमारी मर्जी है कि हम जो है वो हमारा मजहबी त्यौहार मनाएं, हमारा हक है। तो वो प्रो चॉइस मूवमेंट रखी और फिर उन्होंने इस प्रो चॉइस मूवमेंट को, क्योंकि हुकूमत ने इसको ब्लॉक किया था, हुकूमत ने इसको रेजिस्ट किया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कोर्ट में इसका फैसला डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन जो है थैंक्स गिविंग जो कल है उसके पहले ही ये कल ही इसका रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है प्रो चॉइस मूवमेंट को कि आप अपना मजहबी कर सकते हैं। आप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि मजहब को जो है वो इनको फॉलो करना होगा, तो मजहब को फॉलो कर सकते हैं और कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने इसी पॉइंट को उठाकर जो है बाकायदा काम किया। गोल खत्म, गोल अचीव हो गया, सोशल मूवमेंट खत्म हो गई। तो बाज़ औक़ात गोल अचीव हो जाता है तो सोशल मूवमेंट जो है वो खत्म हो सकती है। तो प्रो चॉइस मूवमेंट है। प्रो लाइफ में ज़्यादातर है, जैसे एड्स की कंपेन है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं, कैंसर की मूवमेंट चलती हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाएं, तो प्रो लाइफ मूवमेंट्स भी चलती हैं। तो प्रो लाइफ और प्रो चॉइस मूवमेंट्स जो हैं वो आपको दुनिया में नज़र आती हैं। इसमें कुछ मैंने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोशल मूवमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनती हैं? क्योंकि उनको अपने मकसद को कानूनी तौर पे चलाना होता है, जिसके लिए उनको कोई ना कोई एनओसी चाहिए होती है, उनको कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन करानी होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि जो भी उसका हल निकले तो वो बेहतर इस पर सोसाइटी पर चेंज ला सके। जिसमें ग्रीन पीस मूवमेंट, ये नीचे जो है सियरा क्लब,
ग्रीन पीस मूवमेंट, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, ऑडोगॉन सोसाइटी, अर्थ नाउ, ये वो हैं सोसाइटीज, ये वो हैं जिन्होंने पोल्यूशन के हवाले से, एनवायरमेंट इशू के हवाले से काम किया. Any questions? I'll answer in the next session. जैसे ये मूवमेंट्स हैं, कुछ वायलेंस मूवमेंट भी है जिसमें विमेन सफरेज की मूवमेंट थी जो 1900s में चली थी, जिसमें वोट के हुकूक की बात की गई थी. फिर ये वाली मूवमेंट चली थी जिसके अंदर लॉयर एसोसिएशन की मूवमेंट थी. ये इंटरनेशनल मूवमेंट्स दो हैं जिसके अंदर पीस के साथ चली, ये वायलेंस के साथ है. तो कभी कभी पीसफुल होती है मूवमेंट, कभी वायलेंट मूवमेंट होती हैं, कभी नेगेटिव मूवमेंट हो सकती हैं, कभी पॉजिटिव मूवमेंट्स हो सकती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट है कि कोई ना कोई सोशल मूवमेंट का पर्पस होता है, पर्पस के बगैर जो है वो नहीं हो सकती. अच्छा, कलेक्टिव बिहेवियर, सोशल मूवमेंट एक टाइप है कलेक्टिव बिहेवियर की, जैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये टाइप है, लेकिन इसको हम इसलिए अलग पढ़ते हैं कि ये जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टेजेस ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है बाकी कलेक्टिव बिहेवियर के मुकाबले में, ज़्यादा पर्पसिव होती है दूसरे कलेक्टिव बिहेवियर के मुकाबले में. जैसे पैनिक है, ह्यूमर है, उसके अंदर पर्पस नज़र नहीं आता. रायट्स हैं, बाज़ औक़ात में पर्पस नज़र नहीं आते. मास सुसाइड है, मास माइग्रेशन है, फैशन है, उसमें पर्पस नज़र नहीं आता. लेकिन सोशल मूवमेंट्स में आपको पर्पस, ये मकसद नज़र आता है. सोशल मूवमेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसमें लीडर्स होते हैं, इसमें फॉलोअर्स होते हैं, इसमें लोग काम करने वाले होते हैं. उन बाकायदा जो है बाज़ मूवमेंट्स में तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, इस किस्म के लोग भी जो है मतलब बाकायदा पोस्ट भी मौजूद होती हैं. तो सोशल मूवमेंट्स बाज़ औक़ात लंबी चलती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, परमानेंट हो सकती हैं, या हो सकता है टेम्पररी भी हो सकती हैं. ये गोल के ऊपर है कि गोल कैसा है. गोल अचीव हो जाता है तो हो सकता है सोशल मूवमेंट खत्म हो जाए. और ज़्यादातर इसका गोल क्या होता है? गोल होता है या तो चेंज को लाना या चेंज को आने से रोकना. ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो सोशल मूवमेंट है ये बाकायदा एक अटेम्प्ट है, वो जो हमने भी डेफिनेशन में भी बताया कि अटेम्प्ट है, ऐसा अटेम्प्ट है जिसके अंदर बाकायदा इंस्टीट्यूशंस में तब्दीली लाने की बात की जाती है. यानी कि आप जुडिशरी में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चेंज लाना चाह रहे हैं, आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में चेंज लाना चाह रहे हैं, आप जो हैं जो चेंज लाना चाह रहे हैं वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में चेंज है, तो मुख्तलिफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन में चेंजेस ला रहे हैं. तो ये चेंजेस जो है मूवमेंट चलती हैं, जो चेंजेस जो ला रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन की बेस पर भी हो सकती हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर हो, जिससे पूरा जो पूरी हुकूमत है, हमारा पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है सोसाइटी का, उस पर इम्पैक्ट करता है. और बाज़ औक़ात क्या होता है, सिर्फ सोसाइटी के एक ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट करता है सोशल मूवमेंट, सब पर इम्पैक्ट नहीं करता. और ये जो चेंज होता है, ये सोशल चेंज जो है, ये चेंज जो है वो हो सकता है कि सिर्फ लिमिटेड हो, छोटे सी जगह पर हो. ऊपर मैंने बताया था कि बड़े पैमाने पर हो, जिसके अंदर हम पूरे माशरे में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाते हो. और छोटा भी हो सकता है, जैसे सिर्फ प्रिजन के अंदर जो कैद खाने हैं बने हुए हैं, जो जेल्स बनी हुई हैं, सिर्फ उसमें चेंजेस को लाना. ये हो सकता है सिर्फ एक मोहल्ले के अंदर तब्दीली लाना, वहाँ के इलाके को ठीक करना, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, कच्ची आबादी को जो है बेहतर बनाना. एक जगह पर जो है इलेक्ट्रिसिटी या पानी का मसला है तो उसको बेहतरी की तरफ लेके आना, उसके हवाले से जो है मेहनत, स्ट्रगल करना. तो ये भी हो सकता है कि किसी ख़ास सिर्फ एक इलाके की बात हो, किसी ख़ास जो है इलाके की स्कूल्स को जो है वो दोबारा से रिवाइव करना. तो ये रिफॉर्म्स इसको कहते हैं. रिफॉर्म्स का मतलब होता है लिमिटेड स्कोप होता है. लिमिटेड का मतलब होता है कि बहुत छोटे पैमाने पर होता है काम और कम लोगों को फ़ायदा या नुकसान होता है. और जो बड़े पैमाने पे काम होता है जिसमें इंस्टीट्यूशन में चेंज आना है, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है. तो हो सकता है गवर्नमेंट भी उसके अंदर उस मूवमेंट का हिस्सा कभी कभी बनती है ताकि जल्दी जो है वो काम हो. तो कभी कभी अवाम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, कभी अवाम जो है खुद अकेले करती है. तो बहुत सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर आम लोग करते हैं, सोशल मूवमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि वो चेंजेस लेकर आए. फिर चेंज जो है वो रेडिकल भी हो सकता है यानी रेवोल्यूशनरी हो सकता है. ऐसा चेंज जिससे बाकायदा इनकलाब आ जाए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था, सोशल मूवमेंट का नतीजा है. चाइनीज़ रेवोल्यूशन फ्रेंच इसका नतीजा है. इजिप्ट का रेवोल्यूशन आप आ जाए, जापानीज़ रेवोल्यूशन आ जाए,
آپ افغانستان کے ریولیوشن پر آ جائیں, ایران کے ریولیوشن پر آ جائیں, تو آپ کو یہ سارے جو ریولیوشنز ملیں گے یہ اس کے اندر ٹوٹل چینج تھا. اس کے اندر پوری حکومتیں چینج ہوئی ہیں, پورا سسٹم چینج ہوا ہے. جیسے ایران جب ریولیوشن آیا تھا تو اس کے اندر بادشاہت ختم ہوئی تھی اور مذہبی جماعت نے حصہ لے لیا. اسی طرح جو ہے وہ آپ اگر ایجپٹ میں آتے ہیں تو ایجپٹ میں ڈکٹیٹرشپ تھی, اب جمہوریت آ گئی ہے وہاں پر, یعنی کہ اب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا سسٹم آ گیا ہے. تو ریولیوشنری کا مطلب ہے کہ بالکل کمپلیٹ چینج آنا, کمپلیٹ. اور بعض اوقات ایولیوشنری ہوتی ہے, آہستہ آہستہ چینج لاتے ہیں, تیزی سے چینج نہیں آتا بلکہ سلو چینج آتا ہے. اب ہم کر رہے ہیں اسٹیجز آف سوشل موومنٹ. اس کے 4 بیسک اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا اسٹیج جو ہے سب سے امپورٹنٹ اسٹیج ہے. وہ کیوں امپورٹنٹ اسٹیج ہے کہ وہاں پر یہی اسٹیج ہے جس کی وجہ سے سوشل موومنٹ شروع ہوتی ہے. اگر یہ پہلی سچویشن نہیں ہوگی تو کبھی بھی سوشل موومنٹ شروع ہوگی نہیں. اور وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیج ہے ڈسکنٹینٹ اینڈ ڈسسیٹسفیکشن ود دا سچویشن. کا مطلب ہے جو کرنٹ حالات ہیں ملک کے, شہر کے, محلے کے, جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے لوگ جو ہے سیٹسفائی نہ ہوں. سوشل موومنٹ زیادہ تر وہ لوگ شروع کرتے ہیں جو سچویشن سے ڈسکنٹینٹ ہے, ڈسسیٹسفائی ہے. وہ اس سچویشن کو پسند نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر چینجز آئیں, لوگ جو ہیں اس میں پیس آ جائے, امن آ جائے, بہتری ہو جائے سچویشن میں. اگر ہر وقت گندگی آ رہی ہے تو صفائی ہو جائے, گندگی ختم ہو جائے. تو فار ایگزامپل کی بات ہے, پولوشن ہے تو پولوشن ختم ہو جائے. جیسے لاہور میں اسموگ ہے تو لوگ پریشان ہیں کہ اسموگ ختم ہو جائے, تو اسموگ کیوں زیادہ آ رہی ہے. تو وہ سچویشن ڈسکنٹینٹ کا مطلب ہے, ڈسسیٹسفیکشن کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اس سے خوش نہیں ہیں, راضی نہیں ہیں. تو پہلی فیلنگ کیا آتی ہے اس کے اندر, کیوں کون سی فیلنگ آتی ہے کہ جب چینجز نہیں آ رہے ہوتے اور جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے تو انسانوں کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے, اس کو کہتے ہیں فیلنگ آف فرسٹریشن. ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, ہم بالکل ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں سچویشن سے, اور جب تبدیلی نہیں لا پا رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے سچویشن کو چینج نہیں کر رہے ہو سکتے, تو فرسٹریشن ہوتی ہے. جیسے ابھی بھی آپ کلاسز لے رہے ہیں, آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو فیس ٹو فیس کلاسز لینا ہے تو ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بھئی ہم کیوں نہیں لے پا رہے, کب یہ حالات ٹھیک ہوں گے, کب ویکسین آئے گی, کب ہمیں ملے گی, کب ہم جو ہے نارمل اس پہ آئیں گے. تو ابھی ہم اس سچویشن میں بھی ڈسسیٹسفائی ہیں, اور اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری دنیا کام کر رہی ہے. صرف سوشل موومنٹ جو چل رہی ہیں وہ پوری گورنمنٹ کے لیول پر چل رہی ہیں, نہ کہ انڈیویجول لیول پر. تو گورنمنٹ کے لیول پر لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ ایشو ہی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے کا ہے, اور وہاں پر اب گورنمنٹ کا کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہو, کیونکہ وہی فرسٹریشن فرسٹ ٹائم ایسا حالات ایسے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اتنی ہی فرسٹریشن فیل کر رہی ہے جتنی عوام فرسٹریشن فیل کر رہی ہے. فرسٹریشن آتی کہاں سے ہے, فرسٹریشن ہوتی کیوں ہے؟ تو اس میں فرسٹریشن جو ہے سچویشن کی وجہ سے آتی ہے, مسئلہ کیا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے. پہلا فرسٹریشن کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ناانصافی ہے, معاشرے میں بہت ساری ناانصافی ہے, سوشل انجسٹس ہے, اور جب ناانصافیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے. دوسرا ہے ڈسکرمنیشن. بہت سارے لوگ آپ جو ہیں مائنورٹی اسپیشلی ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے, ہم سے ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے, ہم کو جو ہے وہ ہماری امپورٹنس نہیں ہے, جاب میں ہمیں ترجیح نہیں دی جاتی, ایجوکیشن میں ہمیں ایڈمیشنز نہیں ملتے, یا اور جو ہمارے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے بجائے ہمیں حل نہیں کیے جاتے بلکہ ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی سے الگ کر دیا گیا ہے. تو ڈسکرمنیشن جن کو لگتی ہے وہ بھی اپنی حقوق کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں. لیک آف فیسلٹیز ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس سہولت ہی نہیں ہے اس چیز کی, اس وجہ سے آپ کہ الیکٹرک کا پرابلم آ رہا ہے, الیکٹریسٹی کا آ رہا ہے, گیس کا آ رہا ہے, پانی کا آ رہا ہے, سڑکیں خراب ہیں, آپ کی کچی آبادی میں ڈرینیج سسٹم خراب ہے, پورا پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی, بارشوں کا پانی جو ہے کھڑا رہتا ہے. تو فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ سوشل موومنٹ کو آغاز کر سکتے ہیں. انسمپیتھیٹک لوکل گورنمنٹ آفیشلس کا مطلب یہی ہے کہ مسلسل لوگ بول بول کے تھک جاتے ہیں, اور جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ حالات کو بہتر نہیں کر پا رہی ہوتی ہے. کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں کچرا اور گاربیج کلیکٹرز کا ہے, گاربیج کلیکشن کا ہے, اور صفائی کا ہے.
अब ये सफाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया, चाइनीज गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया कि वो कचरा उठाएगी, लेकिन फिर भी आप हर इलाके में चले जाएं, जो बॉक्सेस दिए गए हैं हर इलाके में, वो इतने कम बॉक्सेस दिए गए हैं, डस्टबिन इतने कम दिए गए हैं कि वो कचरा जो है वो उस डस्टबिन वो 1-2 घंटे में भर जाते हैं, फिर सारा नीचे कचरा गिरा हुआ होता है और गंदगी होती है और जो है बीमारियां फैलती हैं उससे, और लोग जो हैं वही प्रॉब्लम नजर आती है। और फिर पुराना जो गार्बेज पड़ा हुआ है, बड़े बड़े डम्पस्टर्स पड़े हुए हैं गार्बेज के, बहुत जगहों पर गार्बेज ऐसे ही ऐसा पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं उठाया जा रहा। तो कराची जो है एक पूरा गंदगी का नमूना बन गया है, और अच्छे अच्छे इलाके, बुरा इलाके की बात नहीं होती, अच्छे अच्छे इलाके इससे जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो अनसिम्पैथेटिक जो है लोकल गवर्नमेंट आपको नजर आती है इसमें, कि वो काम ही नहीं करती है, काम नहीं करना चाहती, सीरियस नहीं है। लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ले सकते हैं और आप मेयर सिस्टम को या कमिश्नर को भी ले सकते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन के जो आती है उसके अंदर एक और भी फ्रस्ट्रेशन एक जगह से आती है, वो आती है फीलिंग्स ऑफ डेप्रीवेशन। फीलिंग्स ऑफ डेप्रीवेशन, फीलिंग्स को मतलब पता है आपको, डेप्रीवेशन का मतलब मैं बताती हूँ। डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि आपको डिप्राइव्ड किया जा रहा है, आपका हक है, आपका राइट है, आपको वो मिलना चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा, उसको डेप्रीवेशन कहते हैं। और आपको जब ये फीलिंग आ जाए कि ये तो मेरा हक था फिर भी मुझे नहीं मिला, तो वो आपके अंदर वो फीलिंग आती है डेप्रीवेशन की। दो तरह की डेप्रीवेशन होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, दूसरी होती है रिलेटिव डेप्रीवेशन। एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन क्या होती है? एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन उसको कहते हैं जिसके अंदर आपको बेसिक जो सहूलियात हैं आपकी, वो भी जो बेसिक एस्पेक्ट है वो भी पूरे ना हो रहे हो। जैसे बेसिक एस्पेक्ट में आपका रोटी कपड़ा मकान है, हेल्थ एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, या बेसिक एजुकेशन है और प्राइमरी हेल्थ केयर है, वो भी आपको नहीं मिल रहा हो, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आईनी हक है, ना मिल रहा हो, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन। एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन जो है वो होती है जो गुर्बत ज़्यादा लोग होते हैं उनके लिए होती है। ये बहुत गरीब लोग होते हैं, पावर्टी और बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, यानी कि वो लोग जो अपना जिनकी 3 वक्त की ज़रूरत में रोटी कपड़ा मकान भी पूरा ना हो रहा हो, ये एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन कहलाती है। पाकिस्तान में 23% जो है लोग जो हैं ये एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन का शिकार है। और वो क्यों शिकार है? क्योंकि उनको 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, स्पेशली वो लोग जो गांव में रहते हैं। और क्यों नसीब नहीं है उनको 3 वक्त का खाना? क्योंकि इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है, उनके पास ज़मीनें काश्त करने के नहीं हैं, वो लोग कर्जे में ज़िंदगी गुजारते हैं, 6 महीने काश्त करते हैं, 6 महीने बैठ के खाते हैं, तो उनके पास कर्जा बहुत आपको नज़र आता है। तो यहाँ पर जो है वो फीलिंग्स ऑफ डेप्रीवेशन में एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन होती है कि उनकी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनके पास कमाई नहीं है, उनके पास इतनी सैलरी नहीं है, उनके पास इतने वेजेस नहीं है। रिलेटिव डेप्रीवेशन की कहानी दूसरी है। रिलेटिव डेप्रीवेशन उस वक्त होती है जब आप किसी से मुकाबला करते हैं अपने आप को, और फिर आप कहते हैं कि उसके पास ये है और मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो वो रिलेटिव डेप्रीवेशन होती है। जैसे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो मूवमेंट शुरू हुई थी, तो उन्होंने ये कहा, ये सबसे उनका जो पॉइंट था यही था, रिलेटिव डेप्रीवेशन का पॉइंट था। इनको लग रहा था, जो रिलेटिव डेप्रीवेशन इनको लग रहा था, बल्कि उनका ये पॉइंट था कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी में काम नहीं करते, वो ज़्यादा काम नहीं करते, सारे काम यंग डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन पैसे जो हैं वो सीनियर डॉक्टर्स को ज़्यादा मिलते हैं और हमें कम मिलते हैं, यानी यंग डॉक्टर्स को कम मिलते हैं। तो यंग डॉक्टर्स ने मिलकर मूवमेंट स्टार्ट की थी, लाहौर और कराची से शुरू हुई थी ये मूवमेंट, और ये फिर पूरे पाकिस्तान में फैली और सारे यंग डॉक्टर्स ने अपनी अलायंस बना ली, एक पार्टी बना ली, एक मूवमेंट चलाई, एक यूनियन बना ली, और वो यूनियन अपने हुकूक के लिए उस पर काम करना शुरू किया। और वो काम जो शुरू किया उसके अंदर यही था रिलेटिव डेप्रीवेशन, कि उनके पास ज़्यादा है हमारे पास नहीं है, वो कम काम करते हैं और ज़्यादा मिलता है, हम ज़्यादा काम करते हैं हमें कम पैसे मिलते हैं, तो हमारे भी पैसे बढ़ाए जाए, हमारी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए। तो ये रिलेटिव डेप्रीवेशन है। तो रिलेटिव डेप्रीवेशन और एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, दोनों तरह की डेप्रीवेशन जो होती है, तो वो फीलिंग जो क्रिएट करती है वो इंसान में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग क्रिएट करती है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंसान को समझ नहीं आता, या वो खुशी कर ले, रोए, हंसे, लोगों के साथ क्या करे, वो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग जो है वो एग्रेशन के अंदर भी तब्दील हो सकती है, और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग जो है वो
ڈپریشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے, لوگ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈپریشن میں لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ سوسائٹی سے الگ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایگریشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ایگریسو ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ سوشل موومنٹ کو بے ایکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں, کچھ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سب لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. فرسٹریشن ایک اور جگہ چیز سے بھی آتی ہے. فرسٹریشن ایک اور آسپیکٹ سے جو آتی ہے وہ آتی ہے رائزنگ ایکسپیکٹیشنز آف سوسائٹی. سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور سوسائٹی میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی امپلائمنٹ دے گی, ہمیں سوسائٹی جو ہے ہمارا حق دے گی, ہمیں سوسائٹی جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی امن دے گی, پیس دے گی, اسٹیبلٹی دے گی. ہم یہ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی سے. لیکن جب سوسائٹی یہ نہیں دے پاتی ہمیں اور ہمارے حقوق ہمیں پورے نہیں ملتے, ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو سوسائٹی یا حکومتیں پورا نہیں اترتی ہیں, تو ہمارے اندر فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے کسی حکومت کو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہمارے سارے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی, اور جب وہ پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اور 4-5 سال تک رہنے کے باوجود بھی وہ مسائل حل کرنے کی بجائے اور کریٹ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے ووٹ مانگتی ہے, تو آپ کہیں گے ہم تو کبھی ووٹ نہیں دیں گے اس کو, کیونکہ انہوں نے تو ہماری کوئی بھی جو ہے کوئی بھی مسئلے پورے نہیں کیے بلکہ انہوں نے مسئلے میں اضافہ کیا. تو وہ رائزنگ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں سوسائٹی کی, گورنمنٹ کے ساتھ, باقی اداروں کے ساتھ, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ, وہ جب پورے نہیں ہوتے تب بھی انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا 2-3 سال پہلے جو ہے وہ NTS کا ٹیسٹ ہوا تھا, انٹری ٹیسٹ ہوا تھا. انٹری ٹیسٹ کا جب رزلٹ آیا نا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں کو پتا تھا کہ ان کو پورے مارکس ملنے ہیں, یعنی کہ ہائیسٹ مارکس ملنے ہیں, وہ بھی فیل ہو گئے. تو گڑبڑ محسوس ہوئی. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے زیادہ تر اپنے پیرنٹس کو کہا, پیرنٹس نے مل کر ٹیچرز, اور پھر ٹیچرز اور پیرنٹس نے مل کر جو ہے احتجاج شروع کیا, اور احتجاج بڑے پیمانے پر ہوا. کراچی میں شروع ہوا تھا یہ احتجاج, اور کراچی میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو جن کو میڈیسن میں جانا تھا انہوں نے کیا. اور جب NTS کے وہ پیپرز کو دوبارہ سے کھول کر چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ آنسر شیٹ جو کی تھی وہ غلط بنی ہوئی تھی یا آگے پیچھے بن گئی تھی, اور باقی دوبارہ ریزلٹس چیک ہوئے, لیکن چیک کر کے جو ہے ایکسیپٹنس نہیں ہوئی, بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ کینسل کر دیا, NTS کا ٹیسٹ کینسل کر دیا گیا. اور پھر دوبارہ سے سرے سے یہ ٹیسٹ ہوئے تھے, اور پھر جو ہے لوگ اس میں آئے تھے, اور بہت سارے لوگ جو ہے نئے ٹیسٹ دیے, اور جو پاس ہو گئے تھے ان کو پاس رہنے دیا گیا دوبارہ چیک کر کے, اور جو فیل ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے چانس دیا گیا نیکسٹ ٹیسٹ دینے کا. اور پھر اس کے بعد سے NTS والوں کو جو ہے بہت مشکل سے ٹیسٹ کو ایک ٹیم کمیٹی بنائی گئی, گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی جو NTS کے ٹیسٹ کو مانیٹر کرتی ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک سوشل موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, مقصد حاصل ہو گیا, وہ سوشل موومنٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی سوسائٹی کی کہ NTS والے ایسی مسٹیک نہیں کریں گے, وہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے فرسٹریشن ہوئی, اور جس کی وجہ سے لوگ باہر نکلے. تو آپ کو نظر آتا ہے لوگ باہر نکلتے ہوئے, لیکن ابھی بھی پہلا اسٹیج شروع نہیں ہوا. پہلے اسٹیج کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلا اسٹیج یعنی کہ سوشل موومنٹ شروع ہونے کے لیے پہلے اسٹیپ کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. پہلی یہ چیز ہوگی کہ بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے وہ فرسٹریشن کی فیلنگ رکھتی ہو, ٹھیک ہے, فرسٹریٹڈ ہو. یعنی اگر میں کہوں کہ جانے دو, چھوڑو, کوئی مسئلہ نہیں, ہوتا ہے, ہونے دو, ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا, ہونے دو, کسی کے بھی ساتھ ہو رہا ہے تو کوئی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ میں فرسٹریشن نہیں ہے, کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے آپ کو پرواہ نہیں پڑی ہوئی ہے, اس لیے آپ اس کو کیا کرتے ہیں, آپ چھوڑ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہونے دیا جائے, تو وہ فرسٹریشن کی فیلنگ آپ میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے مسئلہ, ہر وقت جب بھی دیکھو تو کچرا ہر جگہ پڑا ہے, گاربیج ہر جگہ پڑا ہے, ہر دفعہ دھواں نظر آ رہا ہے, انوائرمنٹ کا مسئلہ نظر آ رہا ہے, تو آپ فرسٹریشن فیل کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی ایشو کے بارے میں, تو پہلے آپ اس کا حصہ ہوں کہ لارج نمبر آف پیپل پہلے فیل تو کرتے ہو فرسٹریشن, کریں تو صحیح. ہم فرسٹریشن فیل نہیں کریں گے تو ہم آگے نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں آئیں گے. فرسٹریشن صرف فیل نہیں کرنی بلکہ یہ فیلنگ جو ہے دوسروں کو شیئر بھی کرنی ہے.
यानी कि आप बात भी करते रहें, अपने मोहल्ले में बात करें, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोगों से बात करें, टीचर से बात करें, मोहल्ले वालों से बात करें, आसपास के लोगों से बात करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में बात करें। आप मुसलसल ये शेयर करें दूसरों के साथ अपनी फीलिंग उस फ्रस्ट्रेशन की, ठीक है। ये दूसरा इसमें आ गया। फिर तीसरा जो होगा, जब वो लोग जो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और दूसरों को फ्रस्ट्रेशन इसकी फीलिंग को शेयर भी कर रहे हैं दूसरों के साथ, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि अब हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए, या इस मसले के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, या इस मसले में हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, अभी हमें कुछ करना चाहिए। जब हम कहते हैं ना समथिंग शुड बी डन, दे फील समथिंग कैन बी डन, कुछ किया जा सकता है, तो फिर ये पहली हम कहते हैं पहला स्टेज होगा, यानी लोग जो हैं खड़े होने को तैयार होंगे। जैसे पाकिस्तान मूवमेंट जब बनी थी तो बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को देख रहे थे, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में जो है मुसलमान लोग जो थे वो अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं हो रहे थे, हिंदू मेजॉरिटी थी और हिंदू मेजॉरिटी अपने एजेंडा को लेकर चल रही थी और मुसलमानों का एजेंडा पूरा नहीं हो रहा था। फिर कायदे आजम भी जब आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया और वो भी कांग्रेस का साथ दिया उन्होंने आते ही। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कांग्रेस में इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क आज़ाद करने की बात की। तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, और जो ये फ्रस्ट्रेशन जो स्पेशली यूथ में बढ़ी और यूथ ने फीलिंग शेयर की, और इसीलिए जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, सोशल मूवमेंट बनाई, उसका नाम रखा एंग्लो मोहम्मदन सोसाइटी के नाम से उन्होंने उस सोसाइटी को रखा, मूवमेंट स्टार्ट की कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी कायदे आजम से उस वक्त उनकी पूरी नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, एंग्लो मोहम्मद सोसाइटी का, और ये जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो थे वो इसमें शामिल थे, ये सब लोग जो है उसी प्लेटफॉर्म से खड़े हुए, अलीगढ़ से ये सब लोग खड़े हुए थे, और ये लोग वो थे जिन्होंने कहा हमें कुछ करना है, हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब करने के लिए तो लोग तैयार होते हैं, एक्शन लेने को तैयार होते हैं, तो भी ये पहला स्टेज जो है वो डेवलप होता है। लेकिन अगर हम लोग क्या है, हम इस पे ए और बी हैं, हम वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि नाइंसाफियाँ हो रही हैं, हम बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में बहुत सीरियस हैं, फिर हम ये शेयर करते हैं फीलिंग दूसरों के साथ भी, हम दोस्तों में उठते बैठते, घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स में ये फीलिंग शेयर करते हैं फ्रस्ट्रेशन की अपनी। लेकिन जब बात आती है एक्शन की तो हम पीछे हट जाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो नहीं एहतजाज करने बाहर निकल सकते, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और कौन जाएगा, कुछ हो जाएगा तो पुलिस पकड़ लेगी तो, या गवर्नमेंट उसका शोकोज नोटिस दे देगी तो। बहुत सारे लोग जो है तीसरे मरहले पर नहीं आते, जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट का वो हिस्सा नहीं बनते। दूसरा स्टेज, जो सेकंड स्टेज है, उसके अंदर जो लीडर्स और फॉलोअर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं मूवमेंट में। कौन लीड करेगा, कौन फॉलो करेगा, सारे लीडर्स नहीं हो सकते, सारे फॉलोअर्स नहीं हो सकते। बहुत से लोगों में ये क्वालिटी होती है कि वो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर लेते हैं, लोगों को अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों को अच्छा गाइड कर देते हैं, तो वो लीडर्स बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता हमें करना क्या है, हमें काम बताओ, हम वो कर देंगे, हमसे ना कहो कि ये इसकी इंतजामात कर लो, तो इंतजामी उमूर उन्हीं संभाले जाते हैं, उनसे वो सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे फॉलोअर्स हैं और कौन से ऐसे जो लीडर्स हैं जो सोशल मूवमेंट को कामयाब या नाकाम बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं फॉलोअर्स की टाइप्स को, कि फॉलोअर्स किस किस किस्म के होते हैं। 4-5 तरह के फॉलोअर्स होते हैं, मेन 4 तरह के हैं, बाकी 2 मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें रखे हैं, तो 4 काफ़ी हैं शुरू के। तो जो पहला जो फॉलोअर की टाइप है उसको कहते हैं कन्वर्ट्स। कन्वर्ट्स उस तरह के फॉलोअर्स होते हैं जो सब बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी मूवमेंट के साथ लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो शुरू से लेकर जब जो मूवमेंट के अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो उस वक्त तक छोड़ के नहीं जाते जब तक कि मूवमेंट चलती रहती है। यानी कि चाहे मूवमेंट के अच्छे नताइज हों, चाहे मूवमेंट के बुरे नताइज हों, उसको छोड़ के नहीं जाते, हमेशा उसका साथ देते हैं। बाज़ औक़ात ये शुरू से होके आखिर तक होते हैं, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं लेकिन छोड़ के नहीं जाते।
ये होते हैं कन्वर्ट्स, और कन्वर्ट्स ही वही लोग होते हैं, वही पक्के फॉलोअर्स हैं जिनकी वजह से सोशल मूवमेंट कामयाब बनती है। कन्वर्ट्स ना हो तो सोशल मूवमेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स हैं एडहेरेंट्स। एडहेरेंट्स उस तरह के फॉलोअर्स को कहते हैं जो सपोर्ट तो करते हैं मूवमेंट के गोल को, इशू को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल वक्त आया उस मूवमेंट के साथ वो फौरन छोड़ के चले जाते हैं। ये जो है नरमी गर्मी में सब में साथ नहीं देते हैं। जैसे ही कोई बुराई आई, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, मूवमेंट को फाइनेंस की जरूरत पड़ी, तो कहेंगे नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम साथ नहीं दे सकते। या जरूरत पड़ी एहतजाज करने की जिसके अंदर हो सकता है हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमसे नहीं हो सकता। तो ये एडहेरेंट्स वो लोग हैं जो जैसे ही ट्रबल देखते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। इनकी लॉयल्टी और इनकी ओबीडियंस जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है। अच्छे हालात होंगे तो साथ चलेंगे, बुरे हालात होंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। तो एडहेरेंट्स बहुत बुरे फॉलोअर्स होते हैं और ये सोशल मूवमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है लोग जो है एडहेरेंट्स को और ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन पता नहीं चलता ना कि कौन छोड़ के जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। फिर तीसरे है अपॉर्चुनिस्ट या बेनिफिशियरीज। ये वो उस तरह के फॉलोअर्स होते हैं जो सोशल मूवमेंट ज्वाइन करते हैं किसी खास फायदा हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए या अपना पर्सनल फायदा हासिल करने के लिए। जैसे जर्नलिस्ट जो है सोशल मूवमेंट ज्वाइन करते हैं ताकि उनका कैरियर बढ़ जाए, उनको स्टोरीज मिलेंगी, तो वो लोग का कैरियर अच्छा हो जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे और लोग उनको जानेंगे और लोग उनको उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे या उनको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। और अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वो हो सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले हो सकते हैं, या केटरर्स हो सकते हैं, डेकोरेटर्स हो सकते हैं जो तंबू बांधते हैं और जो टेंट्स बांधते हैं और जो केटरिंग करते हैं और जो पैम्फलेट्स बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं सोशल मूवमेंट को ताकि उनको पर्सनल बेनिफिट हो जाए, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो छोड़ के चले जाते हैं। उनको गोल बाज़ औक़ात जो होता है कि छोड़ के नहीं जाते बल्कि ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ट्स में शामिल हो जाते हैं, ये बहुत पक्के बन जाते हैं, लॉयल बन जाते हैं। तो नेक्स्ट में जो है